TU Civil last year, and when our in-house team checked the financial education awareness of Bharat, who are audiences, even things like net banking, which seems so common, it was very low, as low as 4%. So we thought, why not start our podcast journey using this? You have spoken extensively about this on your channel, and we'd love to kind of deep dive into that. Yeah, sure. I think that's a very good cause. And just to add on to what you said, I was just going through the financial literacy scores of all the countries. And this was a report which was recently published. So in India, 27% of the population is financially literate. And this was on a basis of parameters, like you said, how many of them know like mutual funds, SIP, stocks, and all of that. The same number, you'll be surprised, by the way, in the US is around 67%. In Canada is 68%. Even in UK is around like 68% itself. And India is ranking in the bottom 50 when it comes to the financial literacy score. So I think like there's a big gap to be solved for this, and which is why I think we're doing this. Awesome. So if keeping that in mind, everyone makes financial mistakes, right? Especially when we're younger, it's very common to make financial mistakes. So considering you speak about this topic a lot more often, what are some common sort of financial mistakes that people make, especially in India? Yeah, sure. That's a good question to start off this conversation with. So I think the first mistake which a lot of youngsters are making these days is they're getting into the loan trap, debt trap very early on in their lives. अभी क्या होता है कि जैसे फर्स्ट सैलरी कमा ली तो उससे क्या होता है कि ओके मोबाइल फोन खरीद लेते हैं, या तो लेट्स से अभी 1 साल की सैलरी कमा ली तो अभी मेरी सैलरी बढ़ने वाली तो घर खरीद लेते हैं, हाउसिंग लोन में EMI पे कर सकते हैं, या तो कोई भी डेट ले लिया. सो आई थिंक दैट इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स वेयर पीपल फील दैट कि अभी पैसा कमा लिया तो लोन ले लेते हैं और उसके थ्रू हम लोग कुछ ना कुछ मतलब इसको लोन रीपे कर लेंगे. लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट्स बाय टेकिंग लेवरेज. लेवरेज मतलब क्या कि उधारी. मैंने मतलब किसी से उधार लिया और मैंने स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट किया. दिस इज द वर्स्ट थिंग एनीवन कैन डू इन देयर लाइफ्स. आई नो सो मेनी पीपल हु हैव टेकन डेट एंड देन दे हैव इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट्स, lost all the amount. Firstly, they also did not recover the money, and secondly, they lost all the relationship with these people because उन्होंने उधार से पैसा लिया था और स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था. सो आई थिंक डेट में इनिशियली बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. आई नो डेट इज गुड. अ लॉट ऑफ कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, $1 billion कंपनीज आर taking debt in order to grow their companies, but that comes at a later stage when you are building an empire. But personal life में अगर आप खुद early on एकदम लोन ले लोगे, उधार ले लोगे, so that is not something which will work. That is the first mistake. Second mistake, I feel that आजकल के लोग बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन स्पेंड कर लेते हैं. तो BNPL का कॉन्सेप्ट है, बाय नाउ पे लेटर. इसमें होता क्या है कि चलो ठीक है तुम लोगों ने यूज कर लिया और बाय नाउ पे लेटर में तुम लोगों ने खरीद लिया एक माह और 1 महीने बाद आप पे कर रहे हो. बट अगर आप इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करोगे ये उधार पे, ये लोन पे, इट रेंजेस फ्रॉम 32% to 36%. इट कैन गो बियॉन्ड दैट ऑल्सो ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस. आपको कोई भी बैंक में अगर आपको कोई लोन चाहिए तो पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन भी चाहिए तो आपको 12%, 13% में मिल जाएगा. बट ये क्रेडिट कार्ड या तो BNPL के थ्रू क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड लोगों को ये समझ में नहीं आता. उनको लगता है कि चलो मैं 1 महीने बाद पे कर दूंगा तो ज्यादा अमाउंट वाइज, मतलब 400 रुपए का माल है, 450 रुपए देना है मुझे, मतलब अमाउंट वाइज इट्स नॉट वेरी सिग्निफिकेंट. बट इफ इट पाइल्स अप सिग्निफिकेंटली देन दैट बिकम्स लाइक अनदर मिस्टेक इन माय ओपिनियन. सो क्रेडिट कार्ड ड्यूज अगर टाइम पे नहीं भरोगे आपको इंटरेस्ट बहुत हैवी लग जाएगा जो आपके ड्यूज पेंडिंग है उस पर. दैट इज अनदर मिस्टेक. एंड लास्टली लाइक आई थिंक दैट एक जो बहुत बड़ी मिस्टेक फाइनेंशियली मनी वाइज बहुत लोग करते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि एवरीवन वांट्स लाइक क्विक मनी अल्टीमेटली, मतलब पेशेंस बिल्कुल नहीं रहा है. आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. नाउ Jeff Bezos of Amazon met Warren Buffett and he asked Warren that, Warren, your investing style is so simple and so easy. Why cannot anyone become the next Warren Buffett? And Warren Buffett replied in a very sophisticated manner that nobody wants to become rich slowly. मतलब सबको पैसा तुरंत कमाना है एक्चुअली. तो आई थिंक एक ये होना चाहिए, आपको पैसा जल्दी कमाना है या आपको पैसा ज्यादा कमाना है. अगर आप इन दोनों में डिसाइड कर लोगे तो आप ये गेम को जीत पाओगे. तो पेशेंस इज समथिंग व्हिच इज नॉट देयर इन अ लॉट ऑफ पीपल. मैं अगर मेरी भी बात करूं तो मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया था इन 2020. तो मैंने सोचा चलो 25,000 स्टॉक्स में डाल देते. आई इन्वेस्टेड इन अ पेनी स्टॉक. आई मीन आई नो पीपल विल से कि यार ये सीए कर लिया, सीए में ऑल इंडिया रैंक, यार ये पेनी स्टॉक में क्यों डाल रहे हैं. एंड आई डिड दैट बिकॉज वन ऑफ माय फ्रेंड्स टोल्ड कि ठीक है चलो ये तो बढ़ जाएगा. And that was like the worst investment decision, like the worst decision which I would have ever made. कि ठीक है मेरे फ्रेंड ने बोल दिया इसमें इन्वेस्ट करना है and वो कर दी. That was the worst mistake. I lost all my money because that penny stock went bottom. Risk बहुत ज्यादा थी. And this has happened with a lot of people. Like फिर एक panic selling कर लेते हैं और इन्वेस्ट करने में फिर नहीं, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं आगे जाके. So I think patience is something which is not there. So impatient होना एक बहुत बड़ी गलती होती है with all the investors.
So that being said, right, I think अगर हम लोग 10 साल रिवाइंड करते हैं अपने आप को, we've all started working somewhere around the last 5 to 10 years. So you are starting your job today. If you had to give advice to your younger self, आप क्या बोलते हैं आपके 20 year या 21-year-old self को? दैट्स अगेन अ गुड क्वेश्चन. अगर मैं जॉब शुरू कर रहा होता अभी, तो आई थिंक नंबर 1 एडवाइस मैं ये बोलता खुद को कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो SIP का कॉन्सेप्ट है, वो राइट फ्रॉम द डे व्हेन यू अर्न अ सिंगल अमाउंट ऑफ रुपी तब से शुरू करना चाहिए. आई थिंक आई वुड कॉल माई सेल्फ एज अ फूल इन द सेंस कि मैंने 25th बर्थडे पे SIP करना शुरू किया, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हर महीने. मतलब वो एक चीज़ है जो मैं एडवाइस करना चाहूँगा. सेकेंड थिंग विच आई वुड लाइक टू एडवाइस इसकी, ये जो पैसा आ रहा है इसको एक बजट बनाओ, इसका मतलब स्टडी करो कि कितना इनकम है, कितना एक्सपेंसेस है, एंड स्टार्ट अलोकेटिंग योर इनकम इनटू लाइक डिफरेंट बकेट्स. तो एक होगा कि आपका नेसेसिटीज में कितना खर्चा जा रहा है, जैसे रेंटल हो गया, ट्रैवल हो गया, यूटिलिटीज हो गया, ग्रोसरीज लाना हो गया, कुक की सैलरी हो गया, ये सब नेसेसिटीज है आपको देनी पड़ेगी. तो इनकम में से ऑन एन एवरेज 45 to 50% आप इसमें डाल दो, बिकॉज रेंटल वुड बी द मेजर कॉस्ट. अगर आप मुंबई जैसे शहर में रह रहे हो जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हाई, तो रेंटल आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा. देन बाकी जो 25 to 30% होगा आपके जो भी बाहर जाना, मूवीज पे जाना, या तो लेट्स से बाहर खाना खाना, वो उसमें कवर हो जाएगी, जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस है. जो 20% बचेगा उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, या तो SIP के फॉर्म में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की हर महीने आप इन्वेस्ट कर रहे हो, या तो उसका मतलब कहीं ना कहीं कोई एसेट क्लास में डालो जिससे आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे. तो एक बना लो कि एक हर महीने में इतनी अगर सैलरी है तो कितना परसेंटेज कहाँ पे जा रहा है, एंड स्टार्ट मेंटेनिंग, लाइक स्टार्ट ओनिंग कंट्रोल ऑन दैट थिंग. तो मैं मतलब 2 साल पहले मैंने एक चीज शुरू की थी, बाय द वे, एंड आई बी हैप्पी टू शेयर विद यू कि मैंने सारे एक्सपेंसेस जितने भी है सब नोट डाउन करना शुरू कर दिया था. तो फॉर एग्जांपल इवन इफ आई ओपन माय मोबाइल फोन राइट नाउ, तो मैं अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी लाइक वेरी मतलब क्रेजी, आपको लगेगा कि इतना कौन करता है, बट दिस हैज हेल्प मी अ लॉट. जैसे आज 29 जुलाई मैं कैब लेके आया घर से पिरामिड फाइनेंस में, इट कॉस्ट मी 394 रुपीज. तो मैंने डाल दिया 394 जो गूगल पे पे ऑफकोर्स बस पे हुआ था. कैश के काफी एक्सपेंसेस होते कि मैंने येस्टरडे अगर कोल्ड कॉफी पिया 130 रुपीज. Day before yesterday, I took a cab and went to like a clubhouse which was there. That took me 220 rupees. So जितने भी सारे expenses है वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जितने भी खर्चे हैं मेरे. And then every month end, I ensure कि ओके जो भी expenses है, जितनी भी income है, that will help me to understand कि कितना percentage कहाँ पे spend हुआ है. तो जो wasteful expenditure है मैं उसको avoid कर सकता हूँ next month. जो necessary expenditure मैं उसको देख सकता हूँ कि ओके कैसे इसको कम कर सकते हैं, इतना ही रख सकते हैं. So that helps a lot. तो मैं वो एक एडवाइस दूंगा for a 21-year-old self. Start budgeting, start maintaining your income and expenses. इसके लिए बहुत apps भी होते हैं by the way, जो लोग यूज कर सकते हैं. And last advice which I like to give everyone is कि अगर आप जैसे ही पैसा कमाना शुरू करते हो ना, आप like you should be open to talk about money with your parents या तो family में जो money related conversation है, you should be open to talking about that, because the worst part in India today is that money related conversations are not happening in the society. बहुत डर लगता है, एंड घर पे ऐसे होता है कि नहीं अरे तू तो बच्चा है, इतना मनी रिलेटेड अभी बात नहीं करनी है, पैसों के बारे में अभी नहीं, तू एक बार पढ़ाई कर ले उसके बाद पैसों की बात करेंगे. आई थिंक अपब्रिंगिंग ऑल्सो थोड़ा डिपेंड करता है, मैटर करता है ये चीज में, कि आप जैसे ही आपके किड्स के लिए अगर आप उनको पैसों के बारे में सिखाओगे, बिजनेसेस के बारे में सिखाओगे, ऑटोमेटिकली वो एंटरप्रेन्योरशिप या तो उनके वेंचर्स में ज्यादा सक्सेसफुल होंगे. विच इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई आई फील दैट इंडिया में रिस्क टेकिंग लोग थोड़े कम है वर्सेस रिस्क कवर्स. तो 95% ऑफ द पीपल इन इंडिया आर स्टिल ऑन जॉब, मतलब पे चेक्स उनके एवरी मंथ आते रहते. बट रिस्क सीकिंग कल्चर जो है वो इंडिया में अगर इंप्रूव करना है, डेवलप करना है, देन आई थिंक यू नीड टू स्टार्ट टॉकिंग टू योर किड्स अबाउट मनी एंड स्टार्ट एक्सप्लेनिंग देम कि बिजनेस मॉडल्स कैसे होते हैं. अगर आपका बच्चा कि मैच देख रहा है, यू शुड अंडरस्टैंड कि ओके बिजनेस मॉडल कैसे चलता है, कितना पैसे कौन कमाता है, प्लेयर को कितना मिलता है, टीवी के वो जो चैनल पे आ रही है उनको कितना मिलता है. ऑल दीज कन्वर्सेशंस शुड रिवॉल्व इन द सोसाइटी. Maybe it will also help boost entrepreneurship, right, in your country, because if people know how to manage money, then that's the best way to kind of go about it. Yeah, especially you see like entrepreneurship has become a buzzword now. Yeah. And के बाद like even dinner table conversations, I feel surprised जहाँ पर मेरे को एक मेरे कजिन है, वो 13-year-old, he was asking me कुशल भैया आपका स्टार्टअप क्या करता है. तो मैंने बोला देखो स्टार्टअप के बारे में पता कैसे चला ये बात. वो बोले नहीं वो स्टार्टअप्स आते हैं. तो मैंने एक्सप्लेन किया मेरे स्टार्टअप के बारे में. तो वो बोलता है कि अच्छा वैल्यूएशन कितना है, आपने फंडिंग उठाई गया. एंड आई वाज सो शॉक्ड कि यार 13 साल का लड़का है, ही इज आस्किंग मी कि आपकी कंपनी का वैल्यूएशन कितना है. मतलब मैं जब 13 साल का था, आई वाज लाइक कि मैं तो गेम्स खेलता होगा, मैं तो कुछ भी करता. सो दिस एंटायर पैराडाइम शिफ्ट इज हैपनिंग, एंड आई थिंक इट्स हैपनिंग फॉर द गुड, and this will really help all the Indians to develop and grow in the future. Correct. Because India is such a diverse country, right? Especially considering today where the economy is growing how it is.
whether you're a younger person or an older person, it's not like one rule fits everybody, right? आपको खुद के हिसाब से customize करना पड़ेगा. Because even if you're living, like you said, in Bombay versus you're living, say, in Hyderabad, or you're living somewhere anywhere else in the country, expenses differ massively, right? When it comes to rent, cost of living, utilities, everything. तो अगर आपको ऐसा बोलना पड़े कि अगर आप younger generation को कोई advice दोगे versus older generation को कोई advice दोगे, so how would that work? In the sense that how do you make one rule that everyone can sort of fit, irrespective of where they live? Yeah, sure. Again, that's a tough question because younger and older के लिए I think rules थोड़े different हो सकते हैं by age. But I feel that let's talk for the older ones right now because I think younger ones के लिए मैं just advice दे दो तीन. Older ones के लिए I think one mentality shift which needs to happen अभी जो नहीं हो रहा है मेरे को जितना लगता है कि उनको अभी भी लगता है कि okay you should only invest in FDs or you should only invest in real estate, इसमें ही पैसा बनेगा because that is a traditional thinking कि उनका उनसे ही पैसा बनाया है. Although I'm not saying कि तुम्हारा कुछ भी पैसा FD या real estate में नहीं होना चाहिए, I'm no one to advise on that, but my feeling is that they should have an open mindset कि okay even if you want to invest in stocks, mutual funds, SIP करनी है आपको या तो कोई भी मतलब corporate bonds में आपको invest करना है, that is something which should be there. मतलब open mindset जो होना कि okay not having a stringent mindset कि okay नहीं सिर्फ gold में पैसा डालना है, gold में बढ़ेगा, real estate में बढ़ेगा, land में तेजी आएगी बढ़ेगा या FD में बढ़ेगा. These are good investments, safe है, मतलब इससे आपका पैसा किधर भी एकदम safely grow होगा. But inflation को beat करेगा या नहीं करेगा हमें नहीं पता. आज medical inflation इंडिया में 14% per annum हो गया, which is exorbitant. मतलब अगर आपके medical cost 14% से बढ़ रहे हैं, एजुकेशन इन्फ्लेशन अगर आप देखो तो 12% है कि आपके चाइल्ड के फीस 12% से बढ़ रहे हैं. आज बॉम्बे में सबसे प्राइमरी एजुकेशन अगर आपको आपके किड का करवाना है, they are paying fees of 18 lakhs per annum at schools in Bombay. All the international curriculum schools, their fees will start from 4-5 lakhs per annum. All the IGCSE, IB level curriculum, A levels and all, and at the higher end can go to 25 lakhs per annum also, which is insane amount of money for anyone. अगर आपको लग रहा है कि एजुकेशन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, you need to park your money in asset classes जहाँ पर ये इससे ज्यादा रिटर्न देगा. एंड FDs मतलब इतना रिटर्न नहीं देने वाली है. FDs कितना देगी? कुछ बैंक 5.5%, 6%, कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक 7% वगैरह दे देगी. बट इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है तो आपको यू हैव टू हैव दैट ओपन माइंडसेट. दैट इज वन. The second thing is that I feel that all the older generation like who are watching this, I think you should start talking to your kids or young ones about money at very early age. So financial literacy जो concept है ना, अगर आप आपके kids के साथ dinner table conversation, lunch table conversation में if you start talking about money, they will get used to asking questions to their own bosses also or anyone wherever they go, and they'll understand the concept of money very early in their lives. So again simple सा example, अगर आपको उनको taxation के बारे में समझाना है, आप उनको ऐसे बात करो कि अगर कोई 1 करोड़ रुपए जीतता है, उसको once ईयर बैंक अकाउंट में नहीं क्रेडिट होता है, उसको 70 लाख रुपीस क्रेडिट होगा एंड 30 लाख रुपए गवर्नमेंट के पास जाएगा बिकॉज TDS जो होता है टैक्स डिडक्टेड एंड सोर्स, ये केस में 30% होता है. किसी को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिल रहा है, 1 लाख रुपए का उसको अवार्ड मिला है, तो उसको समझा सकते हो कि 1 लाख रुपए इसके बैंक में नहीं जाएगा, 70,000 जाएगा इसके बैंक में और 30,000 रुपए गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट किया जाएगा. ये सिंपल जो एग्जाम्पल है जो डेली अपन देखते हैं, अगर ऐसे इस तरीके से बात करने लग गए तो I think kids would become smarter day by day and they'll understand about money at a very early stage of their life. That is second. And the third advice for older generation would be that जो भी मतलब जैसे अभी कोई भी इन्वेस्टमेंट्स अगर करनी है, like जैसे उनके लिए like since they would be let's say 50 plus or 60 plus for that matter, I think इमरजेंसी फंड्स का जो कॉन्सेप्ट होता है एंड रिटायरमेंट के बाद कैसे पैसिव इनकम ये होना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो फॉर एग्जाम्पल हैव लाइक इमरजेंसी फंड विच शुड बी कि अगर आपका मंथली खर्चा जो भी है उसका एटलीस्ट 6 to 12 टाइम्स आपका वो होना चाहिए. अगर आपके पास लिक्विडिटी है तो 6 टाइम्स इज फाइन. अगर आपके पास लिक्विडिटी नहीं है तो 1 साल का आपका एनुअलाइज एक्सपेंडिचर होगा वो इमरजेंसी फंड्स में पार्क होना चाहिए, क्योंकि गॉड फॉरबिड कुछ भी अगर हो जाता है तो आप उससे विड्रॉ कर सकते हो थोड़ा पैसा. दैट इज देयर. एंड लास्टली आई थिंक ऑल द ओल्डर जनरेशन मतलब उनको ये रियलाइज होना चाहिए कि उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे पहले, इवन इफ दे वांट टू लिक्विडेट दैट इज फाइन, but at the same time they should teach their younger generations about investing early on in their life. And इसी example के through आप उन्हें समझा सकते हो. So I think this is for all the older generation. For the younger generation one, I think मैंने तो मतलब बता दिए तो तीन advices, but one thing which I would like to tell them is the power of compounding and the power of SIPs and systematic investment plans at very early stage of their career. Now Warren Buffett started investing at the age of 13 if I'm not wrong. उन्होंने बोला था 13 and he also mentions कि मैंने लेट चालू किया था इन्वेस्टिंग करना. तो एट यू इसमें क्या होता है कि अगर आप 20,000 रुपए पर मंथ की भी SIP करोगे 20 साल के लिए, अगर आपने किया, लेट्स से यू आर 21
20,000 पर मंथ की SIP कर सकता है कोई भी आदमी वो इज 12 lakhs पर एनम का पैकेज, ठीक है। 20,000 पर मंथ की हर महीने में आपने इन्वेस्ट किया, लेट्स अज्यूम कि एकदम सेफली 12% का आपको रिटर्न मिल पा रहा है। आज कोई भी म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा डालोगे तो ऑन एन एवरेज 12% मिल जाता है। स्टॉक्स में भी, निफ्टी के इंडेक्स में भी पैसा डाल दिया, जो स्टॉक्स का इंडेक्स है उसमें भी 14% का रिटर्न मिलता है पिछले 10 साल का। तो 20,000 पर मंथ अगले 20 साल के लिए आपका ये हो जाएगा 2 करोड़ का कॉर्पस, ठीक है, 20 साल का, बाय योर 40th बर्थडे। इसके बाद आता है SWP विच इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसका क्या मतलब है कि अगर 40th बर्थडे के बाद आप इसमें से 2 lakhs पर मंथ भी विड्रॉ कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट 20 years ऑफ योर लाइफ। तो अगर आप देखोगे मैथमेटिक्स अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो आपने टोटल 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाया बाय द एंड ऑफ 40th बर्थडे। बट अगर 2 लाख पर मंथ आप विड्रॉ कर पा रहे हो फॉर नेक्स्ट 20 years, तो 2 लाख इंटू 12 विच इज 24 लाख, 24 लाख इंटू 20 विच इज 4.8 करोड़ रुपीज। मतलब आप 2 करोड़ का कॉर्पस बनाए बट आप 4.8 करोड़ रुपीज विड्रॉ कर पा रहे हो। वाई? बिकॉज आपका पैसा कंपाउंड हो रहा है, मतलब 12% पे वो ग्रो हो रहा है। तो भले ही आपने 2 करोड़ का कॉर्पस है, 2 लाख कम हुआ, बचे हुए पैसा वो 12% पे ग्रो हो रहा है। तो इसीलिए आप अगले 20 साल तक 2 लाख रुपए पर मंथ विड्रॉ कर सकते हो। So again, this is just a simple example of power of compounding कि start as early as possible and then you are sorted for the rest of your life। मैं मतलब मेरे को एक गलती लगती है मेरी लाइफ में कि मैंने 25वें साल में SIP करना शुरू किया। ऑल्दो आई एम ओके कि चलो इट्स बेटर लेट देन नेवर, बट जब जितनी मतलब आपकी अगर सपोज सैलरी 30,000 रुपए पर मंथ भी है, जैसे 4 लाख पर, आज एवरेज इंडियन मतलब कितना कमाता होगा, 4 लाख पर एनम भी अगर जॉब में मान लूं तो उसमें से आप 5,000 रुपए पर मंथ की SIP शुरू कर लो, 2,000 की कर लो, बट स्टार्ट इज व्हाट आई वुड से। And you're always late when you start it. Yeah, of course. So now you've spoken about investment, right? You've spoken about speaking about money with your family. You've spoken about parents teaching you. If we were taught about taxation, investments in school also, it would be amazing. But what are some best practices, अगर मैं बोलूँ, in terms of financial planning, right? If we had to say speak to who our audiences, this is Budget Bharat, right? Now they say are earning 30,000 rupees a month, right? If we had to talk to them and tell them कि ये आपका मतलब these are things that you should follow, so what would some of those sort of best practices be? Sure. 2-3 मैं बताता हूँ। तो नंबर 1 वुड बी कि ये एक रूल है जो मुझे काफी अच्छा लगता है, एज रूल बोलते हैं इसको। आपका जितना एज है ना उतना आप डेट में अलोकेट करो। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम 25 years old टुडे, तो 25% ऑफ माई नेटवर्थ या जो भी मेरा पोर्टफोलियो है वो डेट में होना चाहिए। मतलब मैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या तो गवर्नमेंट के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आते हैं उसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़े रिस्क फ्री है, नॉट रिस्क फ्री बट कम रिस्की है। देन बाकी 75% आई कैन इन्वेस्ट इन इक्विटीज या स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स व्हिच आर riskier assets as compared to debt or gold, that is there. So this is one age rule जिसको बोलते हैं। तो अगर आपका एज जैसे 60 है या 70 है तो for that like you need to invest 60 to 70% of your portfolio in debt and बाकी का 30% या 40% आप रिस्क ले लो, इक्विटीज या म्यूचुअल फंड्स में डाल दो। म्यूचुअल फंड में भी फिर डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो सिर्फ कंपनीज डेट मतलब लोन्स में बेसिकली पैसा डालते हैं, तो वो एक होता है। दैट इज वन एडवाइस। द सेकंड रूल टू फॉलो वुड बी कि आपका जो भी इनकम है तो उसको आप डिसाइड कर लो कि कितना परसेंटेज कौन से आपके मतलब एसेट क्लास में जाने वाला है। इन द सेंस कि आपको एसेट क्लास के बाद आपके जितने भी खर्चे होंगे उसको डिवाइड कर लेना। तो इनकम आपकी 100% है, आप डिसाइड कर लो कि 40% मेरा ये इधर जाने वाला है, 30% यहाँ पे जाने वाला है, मेरे को 30% की इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स करनी ही करनी है। दैट इज सेकंड। द थर्ड रूल विच आई वुड से इज कि मेंटेन एन इमरजेंसी फंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको लग रहा होगा कि बहुत क्लीशे या तो बहुत नॉर्मल है, बट सर बता रहा हूँ लाइक आपको नहीं पता कुछ भी हो सकता है। लाइक इमरजेंसी फंड आपका अगर महीने का खर्चा, अज्यूमिंग कि आप 30,000 रुपए पर मंथ कमाते हो, आपका महीने का खर्चा होगा लेट्स से 15,000 पर मंथ सब कुछ मिला के, तो आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए विच शुड बी एटलीस्ट मिनिमम 6 times ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस। सो 15,000 का आपका मंथली खर्चा, तो आपके पास 90,000 से 1 लाख रुपए तक का इमरजेंसी फंड होना चाहिए कि कुछ भी अगर हो जाए गॉड फॉरबिड तो मेरे पास एक इमरजेंसी फंड है बैकअप में जिसके थ्रू मैं विड्रॉ कर सकता हूँ और उसके थ्रू मैं ये कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल अगर चलो एक्सीडेंट हो जाता है गॉड फॉरबिड, या तो लेट्स से कुछ मतलब घर पे कोई भी डिजास्टर हो जाता है, मतलब अनफोर्सीन इवेंट्स जो हमने कभी सोचे नहीं है, चोरी हो जाती, थेफ्ट हो जाता है, वी हैव नॉट प्लान फॉर दीज इवेंट्स, तो कभी भी अगर आ जाते हैं तो उसके लिए इमरजेंसी फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया तीसरा। एंड ये किसी किसी के केस में 12 महीने तक भी होना चाहिए। मतलब 6 months तो मैंने बोला एटलीस्ट मिनिमम, बट अगर आपको लगता है आप एक वर्किंग कपल हो, आपके बच्चे भी है, तो देन आपको 12 months का तो रखना चाहिए। बिकॉज आपके मतलब अभी जैसे वर्किंग कपल हो गए तो उसमें मतलब डिपेंड करता है आपकी स्पाउस वर्किंग है नहीं, आपके डिपेंडेंट्स कितने, फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड लास्ट रूल टू फॉलो अकॉर्डिंग टू मी
for all the people would be that have a health insurance for sure. तो मतलब इंश्योरेंस होना बहुत बहुत जरूरी है. आजकल की जनता मिस्टेक क्या करती है, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करती है एंड वो बोलती है कि इंश्योरेंस में तो इतना रिटर्न मिलता ही नहीं है तो मैं इंश्योरेंस नहीं लूंगा एंड ऑल ऑफ दैट. बट आई थिंक हैविंग अ हेल्थ इंश्योरेंस एटलीस्ट इज लाइक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. द ओनली रीजन आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज एज आई सेड अर्लियर 14% पे आपकी मेडिकल कॉस्ट इन्फ्लेट हो रही है. अगर आपने आज भी एक पॉलिसी जिसका कवर 1 करोड़ है, मतलब आपको 1 करोड़ का सम अश्योर्ड मिलेगा कि अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो उसके लिए आपको 8 से 10,000 रुपए पर एनम का प्रीमियम देना होगा. एंड अगर आपको कुछ भी हो गया अगले 20 साल में, 25 साल में, 15 साल में, डिपेंडिंग ऑन कि आपका टेन्योर कितना है, यू गेट अ कवर ऑफ 1 करोड़ एंड ऑल. तो दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन. तो इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है. इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट मत करो बिल्कुल भी. कीप देम एज सेपरेट. आप देखो मत कि इससे कितना रिटर्न मिल रहा है, बट दैट इज फॉर अगेन सेफ्टी. जैसे गाड़ी चलाते हो तो सीट बेल्ट पहनते हो आप ये सोचते नहीं हो कि अरे यार मैं सीट बेल्ट क्यों पहनूं, मेरा तो एक्सीडेंट होने ही नहीं वाला है कभी भी, बट फिर भी पहनते हो, राइट? बिकॉज इट्स फॉर अ सेफ्टी. सेम एज विद इंश्योरेंस कि ऐसा सोचना नहीं कि मुझे बीमारी होगी नहीं तो मैं इंश्योरेंस ही नहीं लेता हूँ. ठीक है, दैट इज जस्ट फॉर अ सेफ्टी पर्पस कि आप इंश्योरेंस ले रहे हो, कभी कुछ भी हो गया यू कैन गेट योर मनी. आई मीन यू विल बी सरप्राइज्ड, आई विल शेयर सम नंबर्स विद यू. मेरे रिलेटिव के केस में उन्होंने इंश्योरेंस नहीं लिया था, मतलब मैं जिसके पास पैसा मैनेज करने देता उनके क्लाइंट्स एक्चुअली. तो उन्होंने बताया कि बॉम्बे में उनका बेसिकली एक एक्सीडेंट हो गया था एंड इन दैट बिकॉज ऑफ दैट दे हैड टू स्पेंड 50 लाख रुपीस ऑन द एंटायर ट्रीटमेंट एंड दिस वाज फॉर अ टोटल ऑफ आई थिंक 14 days इन दैट हॉस्पिटल एंड ऑल. तो इतना ज्यादा अगर अमाउंट आ जाता है और ऑल ऑफ अ सडन अगर इंश्योरेंस होता तो आई थिंक ये पूरा गवर्नमेंट क्लेम हो जाता, बट इंश्योरेंस नहीं था तो they had to like redeem some of the other investments which were there and वहां से उन्होंने यहाँ पर पे किया. तो I think having an insurance at a very early stage is very mandatory, very important. जितना जल्दी आप लोगे उतना कम प्रीमियम रहेगा, जितने लेट लोगे उतना प्रीमियम बढ़ते जाएगा. And actually, insurance, even from a loan point of view, right? So we've had a lot of instances at Piramal Finance, right? Where so we give a loan attached, insurance attached to the loan. So we've seen where people say, unfortunately, the person has passed away, but that insurance covers the loan and ends up actually paying it. Also, the full burden also doesn't go on to the family. Yeah. So you've seen a lot of cases like that. I think that's a very good point. I was just reading a book actually which mentioned that जो भी आपके लोन्स भी है, डेट भी है, उस पे भी इंश्योरेंस लेना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो दैट कि कुछ भी हो सकता है. एंड अगर आप लेट्स से डेट पे इंश्योरेंस ले रहे हो तो एटलीस्ट वो इंश्योरेंस के थ्रू वो डेट रीपे हो जाएगा. दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली. So now speaking of debt, right? Like I said, when we did the entire the check on financial education and literacy in Bharat, credit score is something that everybody has heard of, right? सबको पता है कि important है क्योंकि इसके हिसाब से अपने को लोन मिलेगा. But nobody really knows कि credit score actually होता क्या है, right? Why is it important? It's important beyond just taking a loan also. इसको अगर अभी अच्छा नहीं है, अगर 600 पे है तो उसको 700 तक कैसे लेके जाए, राइट? सो हाउ what is exactly, first if you could explain what the credit score is. We have different agencies like CIBIL, Equifax, etc. who give you that score. And why is it exactly important for us? Yeah, sure. That's again a good question to touch upon. Credit score is like one of the most important things because आगे जाके लेट्स से आपको घर खरीदना है, आपको हाउसिंग लोन लगेगा. अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको व्हीकल लोन लग जाएगा. इफ यू वांट टू गो फॉर एजुकेशन आउटसाइड इंडिया, जहाँ पर 1.5-2 करोड़ की फीस होती है ऑन एन एवरेज, लेट्स से इन एन आईवी लीग कॉलेज, आपको एजुकेशन लोन लगेगा. एंड व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग फॉर ऑल दीज लोन्स तो आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाएगा बिकॉज बैंक्स या एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उनको भी देखना होता है कि हमारा लोन रीपे होगा कि नहीं होगा. या तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको बोलते हैं कि 90 दिन के बाद अगर इंटरेस्ट नहीं आता है तो वो एनपीए हो जाता है कि ओके मतलब ये अभी डिफॉल्ट हो गया, आएगा नहीं पैसा. तो दे आल्सो वांट टू टेस्ट कि हमारा पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा. सो क्रेडिट स्कोर होता क्या है एग्जैक्टली कि आपकी बेसिकली क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर आपके जितने भी लेट्स से क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स है, या अगर आपने प्रीवियस कोई केस में लोन लिया है, अगर आपने लोन डिफॉल्ट किया है कभी, या तो आपने क्रेडिट कार्ड पे एक्सेस स्पेंड कर दिया है बट आपने वो ड्यू डेट फॉलो नहीं किया, बार बार हर महीने आप ड्यू डेट्स मिस करते जा रहे हो, या तो आपने लेट्स से कोई आपके बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल लोन लिया है जिसकी मतलब जैसे 30 दिन का, 40 दिन का, 90 दिन का, एंड आप वो रीपे नहीं कर पा रहे हो टाइम से, इंटरेस्ट रीपे नहीं कर पा रहे हो, तो आपका क्रेडिट स्कोर इससे हैम्पर हो जाएगा. तो क्रेडिट स्कोर इज कैलकुलेटेड ऑन वेरियस फैक्टर्स कि आपने रीपे किया था, टाइम पे नहीं किया था, आपने बेसिकली क्रेडिट कार्ड के ड्यूज टाइम पे स्पेंड किया नहीं किया,
एंड आपने बेसिकली BNPL के जो भी ट्रांजैक्शन है वगैरह वो टाइम पे रीपे किया या नहीं किया, इससे क्रेडिट स्कोर डिटरमाइन होता है। एंड सारे जो आपने जैसे नाम बताया सिबिल स्कोर होता है, जहाँ पर सिबिल स्कोर लाइक दैट इज द मोस्ट पॉपुलर एजेंसी दीज डेज कि आपका सिबिल स्कोर दिया जाता है कि ये सिबिल स्कोर है तो आपको क्रेडिट रेटिंग अच्छा, आपको लोन इजीली मिल जाएगा। नाउ व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट? बिकॉज अगर आपको आगे जाके लेट्स से ये सब चीजों के लिए लोन चाहिए तो उनके भी मतलब बकेट्स होते हैं, ब्रैकेट्स होते हैं कि इनको इतना लोन सैंक्शन होगा। सेकेंडली, अगर आपका रेटिंग खराब है तो आपको हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा वर्सेस समवन जिसका रेटिंग बहुत स्ट्रांग है उसको ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं किया जाएगा फॉर द सेम नंबर, सेम लोन विच इज देयर, विच इज व्हाई इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। थर्डली, अगर आपको लेट्स से आपके बिजनेस के लिए भी कभी आगे जाके लोन लेना रहा या तो आपको कोई पर्सनल चीज के लिए लोन लेना रहा तो आपका क्रेडिट स्कोर वापस बहुत मैटर करेगा बिकॉज आपको इसी के थ्रू आपके बिजनेस के लिए भी लोन मिलेगा। सो फॉर एग्जांपल आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे स्टार्टअप जो है D2C स्टार्टअप, डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स जो बेसिकली कंज्यूमर के लिए बना रहे कुछ ना कुछ, जैसे कोई भी क्लोथिंग कंपनी, कोई भी फैशन स्टार्टअप, कोई भी शूज कंपनी या तो वॉच कंपनी, कोई भी अगर नई कंपनी चालू होती है तो उनको लोन्स मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड विच इज वाई बहुत सारे रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग कंपनीज आ गए जो आपके रेवेन्यू के हिसाब से आपको लोन देगी और आपने जितना पैसा कमाया उसका प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यू आपसे रिकवर करेगी एवरी मंथ। तो इसका भी कारण ये है कि क्रेडिट स्कोर्स क्या होता है कि इसमें कम होते हैं यूजुअली स्टार्टिंग में, एंड विच इज वाई लाइक पर्सनल जो चीज है अगर वो आप एकदम क्रेडिट स्कोर उसका अच्छा रखो तो आपको लोन भी एकदम इजीली मिल जाएगा। तो दैट इज व्हाई आई थिंक लाइक दीज आर द मेन रीजन व्हाई क्रेडिट स्कोर इज इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर थिंग इज कि अगर आपको लेट्स से गारंटर बनना है किसी का, मतलब गारंटर मतलब क्या कि अगर मैंने लोन लिया एंड अगर मेरा क्रेडिट स्कोर स्ट्रांग नहीं है तो मेरे साथ एक गारंटर होगा। एंड गारंटर मतलब अगर मैंने बैंक को लोन वापस नहीं रीपे किया तो वो गारंटर मेरे बिहाफ पे बैंक को लोन रीपे कर देगा। सो बैंक या NBFC जो भी है। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है एंड अगर आपका एकदम मार्केट में नाम भी, रेपुटेशन भी वैसा है तो आप गारंटर अगर बनोगे तो जो भी जिसके भी आप गारंटर बन रहे हो तो उसके लिए भी काफी इजी हो जाएगा टू गेट अ लोन, एंड विच इज वाई लाइक इनका भी फिर क्रेडिबिलिटी बढ़ जाता है। सो दीज आर लाइक सम ऑफ द रीजंस कि क्रेडिट स्कोर क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक ये मतलब लोन तो आगे जाके तो कभी ना कभी लेना ही पड़ेगा, लेट्स से घर के लिए, गाड़ी के लिए वगैरह वगैरह, तभी आपको ये बहुत फायदे में मिलेगा। So, अभी हम let's presume we are buying a house, right? It's the dream for almost every person, especially in India, right? बहुत मायने रखता है अपना खुद का घर खरीदने में. We've also seen a lot of stories within the company where people have bought their first home. So in fact, last Diwali we went and celebrated people with 1,000 employees from Piramal Finance, including our entire SLT, which is our senior leadership team. So like our MD, Mr. Jairam Sridharan, Jagdeep, Sunit sir, all of these guys, they've all gone CBO, COO, they've all gone to our customers' homes who took a loan from us and celebrated their first Diwali at their home. Right? So we've seen the joy it brings to people's life. तो अगर उसके लिए हम लोग को आज प्लानिंग चालू करने की है, राइट? तो मोस्ट पीपल को बहुत डर लगता है बिकॉज इट सीम्स लाइक अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। बहुत पेपर वर्क चाहिए होता है, डर लगता है कहीं में स्कैम तो नहीं हो रहा है, फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो इफ यू हैड टू स्टार्ट प्लानिंग फॉर अ होम लोन टुडे, हाउ वुड यू गो अबाउट दैट एंटायर प्रोसेस? Yeah, sure. That's again a great question. I feel that अगर मुझे होम लोन की तैयारी करनी है तो सबसे पहले मैं ये डिसाइड करूंगा कि मुझे घर कहाँ पे खरीदना है, कौन से लोकेलिटी में बेसिकली खरीदना है, कितने का घर खरीदना है और कितना बड़ा घर खरीदना है। सो उसके बेसिस पे मुझे आइडिया लग जाएगा कि ये प्लेस पे इतने का घर मिलेगा तो मुझे उतना कॉर्पस बेसिकली इकट्ठा करने की जरूरत है। दैट इज वन। सो अगेन लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं लोअर परेल में रहता हूँ जहाँ पर प्रॉपर्टी प्राइजेस आर इन द रेंज ऑफ 55,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, 55 to 60,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो अगर एक वहां पे 2 BHK 1000 स्क्वायर फीट का भी मैं मान लूं तो 60,000 के हिसाब से 6 करोड़ का 2 BHK वहां पर मिलेगा। अगर मुझे ये घर लेट्स से 20 साल बाद खरीदना है तो मुझे आज ही डिसाइड करना है कि कितना मुझे आज इन्वेस्ट करना चाहिए कि 15 साल बाद या 10 साल बाद जब भी मुझे घर खरीदना है या 20 साल बाद, कि आज ही मैं इन्वेस्ट करूं कि 12% या 15% के हिसाब से एटलीस्ट 6 करोड़ का कॉर्पस हो जाएगा। दैट इज वन। सेकेंड इज बेसिकली कि अगर मुझे पता है कि 6 करोड़ में से जैसे 20% डाउन पेमेंट होगा तो डाउन पेमेंट के लिए मुझे तुरंत उतना पैसा अवेलेबल चाहिए होगा, एंड बाकी का मैं बेसिकली होम लोन के थ्रू भी कर सकता हूँ। तो अगर आज मेरी सैलरी इतनी ज्यादा है कि ओके ये EMI जितने हो गए, जो भी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स होते हैं जो मुझे लोन के बाद रीपे करने होते हैं, अगर मेरी सैलरी कवर कर पाएगी ये सारे EMIs तो मैं आज भी वो लोन ले सकता हूँ। और अगर मुझे आज घर खरीदना है तो मैं आज भी खरीद सकता हूँ। दैट इज लाइक वन पीस ऑफ एडवाइस। आपका जो इसको बोलते हैं FOIR, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो, ये जो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो होता है ये मेरे हिसाब से
30 to 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैं समझाता हूँ, अगर आपकी इनकम लेट्स से 1 लाख रुपीज पर मंथ है, तो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन मतलब क्या कि आपको ये ईएमआई हर महीने बैंक को देना ही देना है। तो आपका ईएमआई 40,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ है तो बेसिकली ये एक रेशियो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है लाइक कैलकुलेट करना बिफोर टेकिंग एनी लोन एज सच। दैट इज द सेकंड स्टेप व्हिच आई वुड डू। द थर्ड इज बेसिकली मैं असेस करूंगा कि कौन से अलग अलग बैंक से अलग अलग एनबीएफसी है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिल पा रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि कितना इजी प्रोसेस है। आजकल क्या हो गया कि बहुत टफ प्रोसेस हो गया लोन लेना, जैसे आपने बताया इतने पेपर वर्क, इतने डॉक्यूमेंटेशन, इतने जगहों पे सिग्नेचर्स, प्लस डूइंग अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ, दैट जस्ट रिड्यूसेस द बैंडविड्थ ऑफ अ पर्सन टू डू अदर थिंग्स व्हिच दे आर गुड एट, एंड ये बहुत मेंटली मतलब बैंडविड्थ ड्रेन कर देता है। सो आई वुड चूज अ कंपनी और अ एनबीएफसी व्हिच इज देयर कि जो एकदम प्रोसेस एकदम स्ट्रीमलाइन करे, स्मूथ करके दे, और उनका जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो भी एकदम एंश्योर करे कि प्रोसेस इज लाइक एक्सट्रीमली स्मूथ। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे घर खरीदना है, सो रिसेंटली लाइक माय फैमिली वाटर हाउस लाइक इन लोअर परेल, तो उसमें लाइक रिलेशनशिप मैनेजर लाइक दे ओनली एंश्योर कि दे आर कोऑर्डिनेटिंग विद द बिल्डर्स डायरेक्टली, एंड जो भी काम है मतलब जो भी एकदम करना है तो उनके साथ एकदम कोऑर्डिनेशन से हो गया, वेयर आई एम लाइक नॉट इन द प्रेशर ऑफ जस्ट बीइंग विद देम। तो मेरा मतलब मेंटल बैंडविड्थ फ्री हो जाता है। सो दैट इज समथिंग व्हिच आई वुड डू, दैट इज थर्ड। एंड द लास्ट थिंग व्हिच आई डू फॉर अ होम लोन इज कि आई विल जस्ट कैलकुलेट कि ओके इसके बाद ईएमआई कितना होने वाला है मेरा, मेरी एक्सपेक्टेड इनकम कितनी होने वाली है, एंड वेदर माई रेशियो ऑफ दैट फिक्स्ड ऑब्लिगेशन इज मैचिंग और नॉट। अगर वो मैच हो रहा है तो देन वेल एंड गुड, कब तक मैं रीपे कर पाऊंगा। अगर मुझे लगता है कि मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं पहले अर्ली मतलब जल्दी भी रीपे कर सकता हूँ मैं। वो देखना पड़ेगा कि प्री पेमेंट पेनल्टी होती है कि नहीं। अगर आपने लोन जल्दी रीपे कर दिया तो आपको थोड़ी पेनल्टी लग सकती है, बिकॉज बैंक या एनबीएफसी ने वो कैलकुलेट करके आपको लोन दिया था। तो वो सब क्लॉजेस पढ़ने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्री पेमेंट क्लॉज क्या है, मॉर्गेज क्लॉज क्या है, कि आपके घर कितना गिरवी आपका मतलब घर अगर मॉर्गेज पे रखा है तो उसके क्लॉजेस क्या क्या है, एंड उसके बाद मतलब कुछ ऐसे बाय एक्ट ऑफ गॉड अगर कुछ हो जाता है तो उसके केस में मतलब क्या होता है, एंड ऑल दोस क्लॉजेस जो भी आर्ग्यूमेंट्स वो होते हैं वो सब एकदम थोड़ी पढ़ने चाहिए मेरे हिसाब से। एंड हिडन चार्जेस भी होते हैं इन सब केसेस में, कि प्रोसेसिंग फीस हो गए या तो कोई भी ट्रांजैक्शन फीस हो गए, तो हिडन चार्जेस जो भी वो एकदम क्लैरिफाई करवाने चाहिए बैंक या एनबीएफसी से। एक बार ये सब मैंने क्लैरिफाई कर दिया, देन आई विल चूज कि कहाँ से लेना है, एंड देन अकॉर्डिंगली आई थिंक माय होम लोन प्रोसेस शुड बी सेट अप। And even for EMI and all, so on the Piramal Finance website, we have say like a home eligibility calculator, EMI calculator. So I think that also helps क्योंकि वो फिर बहुत easy हो जाता है। आप देखो, you don't have to rack your brains कि maths में कैसे इतना percentage है, इतना EMI होना पड़ेगा, वो सब कुछ जरूरत ही नहीं है। That just makes it a lot simpler. By the way, I can we'll link everything in the description below, so you can always check it out there. तो इससे मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, लाइक इफ यू कैन एक्सप्लेन तो ईएमआई एलिजिबिलिटी क्या है? बेसिकली क्या होएगा, यू विल पुट अ परसेंटेज, आपका जो इंटरेस्ट रेट पे आ रहा है आपको लोन, यू विल पुट व्हाट लोन अमाउंट यू नीड एंड व्हाट द ड्यूरेशन इज। तो इट विल सिंपली टेल यू कि ये आपका ईएमआई इतना हो जाएगा। तो इट्स लिटरली दैट सिंपल। यू हैव टू पुट इन 2-3 डिटेल्स एंड इट विल टेल यू कि हाँ आप इतना मिल जाएगा आपको, या इतना आपका ईएमआई होने वाला है। सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर पीपल टू देन डू द रिसर्च, चेक पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, लाइक यू सेड राइट, 40% से ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा है, इज इट समथिंग दैट आई कैन अफोर्ड और नॉट। करेक्ट। सो दैट्स अ वेरी इजी वे फॉर समवन जस्ट टू अंडरस्टैंड कि उनका फिक्स्ड ऑब्लिगेशन कितना होगा। Yep. Okay, I think this is a great sort of introduction to financial education for us, and I'm sure for everybody who's watching along as well. Thank you, Kushal. This was amazing. Thank you so much. Thank you for having me. I had a great time as well, and thanks for asking like all the relevant questions. काफी मजा आया आपसे बात करके। Thank you so much.